Kindly turn with me to 2 Chronicles chapter 17. दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 17. We shall read first 10 verses responsively. 2 Chronicles chapter 17. First 10 verses. पहली 10 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे. I'll read verse 1. And Jehoshaphat his son reigned in his stead and strengthened himself against Israel. उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में फौजें रखीं और यहूदा के मुल्क में और इफ्राइम के उन शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने ले लिया था चौकियां बिठाईं. And the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इस्राएल के से काम ना किया. Therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance. उसका दिल यहोवा की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया. Verse 7. And so in the third year of his reign, he sent to his princes, even to Benhail and Obadiah and Zechariah and Nathaniel and to Micaiah to teach the cities of Judah. और उनके साथ ये लावी थे, यानी समाया और नतनिया और जबदिया और असाहेल और समीरामोत और यहुनतन और अदुनिया और तुबिया और तूब अदुनिया लावियों में से, और इनके साथ एलिसमा और यहूराम काहिनों में से थे. And they taught in Judah and had the book of the law with them, and they went about throughout all the cities of Judah and taught the people. और यहोवा का खौफ यहूदा के गिर्द गिर्द के मुमालिक की सब सल्तनतों पर छा गया, यहाँ तक कि उन्होंने यहोशफत से कभी जंग ना की. Shall we pray? दुआ करें. Our living loving Father, ऐ हमारे आसमानी जिंदा बाप, thank you for the blessed time granted around the feet worshiping thee. आपके कदमों के इर्द गिर्द आकर आपकी इबादत करने का अच्छा सा वक्त देने के लिए शुक्र अदा करते हैं. Lord, we look unto you for the ministry of the word so that we may correct ourselves and take part in the table worthily. और आपके करीब आकर आपकी इस मेज में हाथ डालने के लिए आपने हमें मद्दू किया है, शुक्र अदा करते हैं. It's not that we are sufficient for ourselves, but our sufficiency is of thee. आसमानी बाप, हम तो अपने आप में काफी नहीं हैं, लेकिन हम हमारे खुदावंद यीशुआ में कामिल होते हैं. Every disturbances, work of the enemy, seen, unseen, rebuke and bind in your mighty name. खुदावंद, दुश्मन जो हमारी मुखालिफत ज़ुहूरी तौर से या अनदेखे तौर से वो करता है, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं कि आप काबू में रखें. We claim the anointing of the Holy Spirit. और रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग हम मांगते हैं. In Jesus' precious name we pray. खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं. Amen. Here just now we read about the life of Jehoshaphat. हमने अभी यहाँ पे यहोशाफात की जिंदगी को हमने देखी है. Yeah, his father Asa, and he was beginning days he was good, then later that he has fallen from grace. उसके बाप का नाम आसा था, जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में रहमत से गिर गया था. Yeah, so his son Jehoshaphat, from the beginning he lived a life which is pleasing unto God. लेकिन उसका बेटा यहोशाफात जो है, उसने शुरुआत से ही बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, जो खुदा की नजर निगाह में मकबूल ठहरी. Verse 3 says, आयत नंबर 3 कहती है, The Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. यहोवा यहोशाफात के साथ था, क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दावीद के पहले तरीकों पर थी और वो बालीम का तालिब ना हुआ. He did not follow his father's way, but David's way he followed. उसने अपने बाप आसा की रविश या तरीकों पर नहीं चला, बल्कि उसके बाप दादा दावीद के पहले तरीकों पर
चला, because Asa's end days were not pleasing the Lord. क्योंकि इसके बाप आसा जो था उसके आखिरी दिन खुदा की नजरों निगाह में मकबूल ना ठहरे। That's what Jehoshaphat, he walked in the ways of David. इसीलिए उसने दावीद की रविशों में चला था। Then verse 4, और आयत नंबर 4, and sought to the Lord God of his father, walked in his commandments, not after the doings of Israel. बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इस्राएल के से काम ना किए। Yeah, he walked in the commandments of God. उसने खुदा के तालिब होकर उसके अहकाम पर चला। He did not after the doings of Israel. इस्राएल के से काम उसने नहीं किए। Though Israelites, they were the children of Abraham. हम जानते हैं कि इस्राएली कौम जो है वो लोग अब्राहम की नस्ल हैं। The 10 tribes, they preferred to go away from the living God worshipping idols. उनमें से 10 कौमें जो थे वो 10 कबीले जो थे वो 10 कबीले अब्राहम के खुदा को छोड़कर बालीम की इबादत करने के लिए चले गए। Yeah, so the Israelites were walking in their own ways and worshipping heathen gods. इस तरीके से इस्राएली लोग अपनी ही राह पकड़कर चले गए और गैर कौमों के माबूदों की इबादत में मशगूल रहे। But Judah, they walked according to the ways of the Lord. लेकिन यहूदा कबीला जो है ये खुदा यहोवा के लिए वफादार रहा। So he did not, Jehoshaphat did not follow the doings of Israel. इस तरीके से यहोशाफत ने इस्राएल के से काम ना किए करके लिखा गया है। So we also must always learn to walk in the ways of the Lord every time. इसीलिए हमें भी याद रखना है कि हम भी हर वक्त यहोवा की राहों में चलें। Yeah, believers are of 2 types. यीशुई मोमिन 2 तरीके के होते हैं, Spiritual believers and carnal believers. रूहानी मोमिन होते हैं और जिस्मानी मोमिन भी होते हैं। Yeah, spiritual believers, they yield themselves to the word of God and obey the Holy Spirit, what it inspires, and they follow according to the word of God. रूहानी मोमिन जो होते हैं वो खुदा के कलाम के मातहत जीते हैं और रूहुल कुद्स की पैरवी करते हैं और रूहुल कुद्स की पैरवी करते हुए उसकी अगुवाई में चलते हैं। But carnal believers, and they believe in Jesus Christ, the finished work on the cross, but they are not day by day conformed to the image of Jesus, but conformed to the world. लेकिन जो जिस्मानी मोमिन होते हैं वो लोग खुदावंद यीशुआ के सलीबी काम पर जो मुकम्मल किया गया है सलीब पर उस पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन दिन ब दिन खुदा की पैरवी करते हुए रूहुल कुद्स की पैरवी करते हुए उसकी रहनुमाई में नहीं चलते। Yeah, the spiritual people, they tremble when God speaks to them through the word and correct their lives. जब खुदा अपने कलाम के जरिए से लोगों से बातें करता है तो रूहानी मोमिन जो होते हैं वो लोग कांपते हैं और अपनी जिंदगियां सुधार लेते हैं। But these carnal believers and those who conform to this world and they compromise in several areas in their lives, they won't follow the word of God, they won't correct themselves. लेकिन जो जिस्मानी मोमिन होते हैं जो इस दुनिया की रविश पर चलते रहते हैं वो लोग खुदा के कलाम की खातिरदारी बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस दुनिया की रविश के मुताबिक दुनिया जैसे बनते हैं। Yeah, in the book of Romans chapter 8, इसीलिए रोमियो की किताब बाब नंबर 8 में लिखा गया है। here we are told about carnally minded people and spiritual minded people. यहाँ पे रूहानी लोगों के बारे में और जिस्मानी लोगों के बारे में लिखा गया है। Yeah, verse 7. आयत नंबर 7, Because the carnal mind is enmity against God, and it is not subject to the law of God, neither indeed can be. इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की तोरा के ताबे है ना हो सकती है। Yeah, they are always yield themselves to the flesh. क्योंकि वो हमेशा अपने जिस्म के मातहत रहते हैं। Yeah, verse 8 says, आयत नंबर 8 में, so then they that are in the flesh cannot please God. और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। That's what every believer must go towards maturity
and keep themselves away from the flesh, and it leads to spiritual life. इसीलिए हर एक यीशु मोमिन को ऐसा करना लाजमी है कि वो रूहानी तरीके से बालिग बनते जाए और जिस्म से छूटकर रूहानियत में ताकत पकड़े। Yeah, verse 14 says, आयत नंबर 14 में लिखा हुआ for है, as many as they are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। Yeah, so my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे अजीज भाई बहनों, yeah, we always must be in company of God's people rather than the people of this world. रूहानी तरीके से चलने के लिए हमें हमेशा इस दुनिया के लोगों से दूर होते हुए खुदा के लोगों के साथ हमें रहना है। Even in the church, we find there are people, they give importance to flesh or carnality, but there are some people, they live in the spirit. हम आजकल के यीशुई एक्लीसिया में भी हम देखते हैं, चर्च में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मोमिन हैं जो अपने आप को जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए अपने आप को उनके हवाले कर लेते हैं, लेकिन खुदा से कांपने वाले रूहानी मोमिन बहुत कम हैं। So we must be very careful not to entertain our spiritual life with the people of this earth or the carnally minded people. इसीलिए हमें बहुत एहतियात से अपनी जिंदगी बितानी है ताकि हम इस दुनिया की रविश में जिस्मानी लोगों के साथ ना मेल खाएं बल्कि हम रूहानी तरीके से जिएं। In 2 Corinthians chapter 6, दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 6 में लिखा हुआ है verse 14, और आयत नंबर 14, yeah, be not unequally yoked together with the unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath light with the darkness? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत। So Jehoshaphat, though Israelites were from Abraham, he was away from that people. इस तरीके से हम देखते हैं कि यहोशाफत जो है वो बाकी लोगों से अलग था। Then verses 2 Chronicle chapter 17, हम वापिस आएंगे दूसरे तवारीख की किताब बाब नंबर 17 verse 6. और आयत नंबर 6। And his heart was lifted up in the ways of the Lord. Moreover, he took away the high places and groves out of Judah. उसका दिल यहोवा की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। Yeah, all the idols and all things he has removed from Judah. यहूदा के मुल्क में से उसने सारे के सारे बुतों को उसने दूर कर दिया। He was zealous for the word of God and sent men of God to preach the word of God, law, so all throughout Judah. अपने खुदा के कलाम के लेकर वो बहुत सरगर्म था, इसीलिए बहुत सारे लोगों को पूरे यहूदा मुल्क में भेजा था कि वो लोग वहां जाकर खुदा का कलाम लोगों को सिखाएं। So they went and taught Judah the book of the law of the Lord. इसीलिए सबके सब लोगों ने यहूदा में चले और यहूदा में जाकर लोगों को खुदा की तोरा का इल्म दिए। Not only that, he followed the word of God in his personal life. He wants others, his citizen, also to follow it. उसने अपनी निजी इनफिरादी जिंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक जिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने सारे के सारे शहरियों को, बाशिंदों को भी खुदा की तोरा के मुताबिक जीने का हुक्म दिया। That's what he has sent the chosen men of God to teach the law of God. इसीलिए उसने चंद खुदा के लोगों को उन अवाम के बीच भेजा ताकि वो लोग जाकर खुदा के कलाम से उन लोगों को मजबूत करें। Yeah, verse 9. आयत नंबर 9। They taught in Judah and had the book of the law of the Lord, and with them went about throughout all cities of Judah and taught the people. सो उन्होंने यहोवा की तोरा की किताब साथ रख कर यहूदा को तालीम दी और वो यहूदा के सब शहरों में गए और लोगों को तालीम दी। Yeah, very wonderful thing. और ये तो बहुत अजीम काम है। Yeah, people of God, people of the land came to the Lord and trembled at his word. मुल्क के लोग खुदावंद यहोवा के करीब आए और उसके कलाम को सुनकर कांपने लगे। Yeah, the fear of the Lord fell upon
all the kingdoms of the Lord, they were round about Judah, so they made no war against Jehoshaphat. और आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, और यहोवा का खौफ यहूदा के गिर्द गिर्द के ममालिक की सब सल्तनतों पर छा गया, यहाँ तक कि उन्होंने यहोशफत से कभी जंग ना की। All the kingdoms of the land round about of Judah, they did not make war with Jehoshaphat. यहूदा के गिर्द गिर्द के ममालिक के सभी सुल्तान जो हैं, उन्होंने यहोशफत से कभी जंग ना की। Yeah, it is a protection of God. ये खुदा की तहफ़्फ़ुज़ है। The day when we go closer to God, when we follow the word of God, God gives and His protection around His people. जब हम खुदा के करीब जाते हैं, तब खुदा अपने लोगों को अपनी तहफ़्फ़ुज़ बख्शता है। So Jehoshaphat enjoyed the goodness of God. तो इस तरीके से यहोशफात ने खुदा की भलाई अपनी जिंदगी में देखी। Yeah, materially also he was flourishing. मालो असबाब के तौर पर भी देखा जाए तो वो बहुत नामवर हुआ था। Verse 12. आयत नंबर 12, Jehoshaphat waxed great exceedingly. He built Judah castle and cities of store. और यहोशफत बहुत ही बढ़ा और उसने यहूदा में किले और जखीरे के शहर बनाए। Yeah, in verse 11 we are told, 11वीं आयत में बताया गया है, also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and tribute, silver, and Arabians brought him flocks, 7,700 rams, 7,700 goats. बाज फिलिस्ती यहोशफत के पास हदिये और खिराज में चांदी लाए, और अरब के लोग भी उसके पास रेवड़ लाए, यानी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे। Yeah. So the day when he lived according to the word of God and yielded himself to the will of God, God has blessed him. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब यहोशफत ने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी सुधारी और खुदा से डरते हुए अपनी जिंदगी जब गुजारा, तो खुदा ने उसे बरकतें दी थी। No war. जंग नहीं in थी, his land. उसकी सल्तनत में बहुत अमन था। What a great thing it is. ये बहुत अजीम बात है ना। So we also, when we walk according to the word of God, God will take care of us and protect us. इसी तरीके से जब हम भी खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे तो खुदा ही हमारा देखभाल करेगा। But what happened to this Jehoshaphat who was a good beginning? लेकिन शुरुआत में जो अच्छा था, अच्छा रहा, इस यहोशफत को आखिर में क्या हुआ? Yeah, he joined affinity with Ahab. वो जाकर आहाब बादशाह से दोस्ती करने लगा। Ahab was a idol worshipper, the king of Israel. आहाब कौन था? आहाब इस्राएल का बादशाह था और वो बुत परस्ती करता था। Yeah, very terrible thing he has done in the land of Israel. इस्राएल की सल्तनत में उसने बहुत बुरा काम किया। So he joined affinity with Ahab. लेकिन जाकर आहाब के साथ यहोशफत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। This is a terrible fall. ये तो बहुत बड़ा गिरावट हम समझ सकते हैं। Yeah, believers, those who are in the Lord must be very firm and not to make any affinity with the ungodly people or carnally minded people. इसीलिए हमें याद रखना है कि जो भी खुदा के लोग होते हैं वो लोग मजबूती से उनको खड़े रहना चाहिए। दुनिया के गैर कौमों से, उनकी रविश से हमें किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। So Jehoshaphat, he fell in the trap of Ahab. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहोशाफात जो है वो जाकर आसाफ के हाथों में गिर जाता है। Yeah, so Ahab took him to the war and he made him to face the war. और आहाब उसे जंग में ले जाता है और जंग छेड़ती है। And Ahab, he went in disguise. और आहाब क्या करता है? वो अपने लिबास बदल के, वो डिस्गाइज करके अपने आप को नकाबपोश जैसा बना के वो जाता है। And the king of Syria told, see, you fight only with the king. तो यहाँ इस जंग में क्या होता है कि उनके मुखालिफ जो सीरिया का बादशाह होता है, वो अपने फौज से कहता है कि तुम लोग सिर्फ बादशाहों पर हमला करना। Who is there as a king? तो अब बादशाह जैसा कौन दिखता है? Jehoshaphat. यहोशाफात ही दिख रहा है। And Asa, he disguised himself. आसा ने क्या किया?
आहब and Ahab, sorry. आहब ने क्या किया था? आहब ने नकाबपोश बन होकर गया था। See, 2 Chronicles 18, देखिए 18वां बाब verse 28. और आयत नंबर 28। Hmm. सो शाह इस्राएल और शाह यहूदा यहोशफत ने रामत गिलाद पर चढ़ाई की। So the war both went. तो इस तरीके से जंग में दोनों शामिल होकर गए। Verse 31. 31वीं आयत। Please. और ऐसा हुआ कि जब रथों के सरदारों ने यहोशफत को देखा तो कहने लगे, शाह इस्राएल यही है। सो वो उससे लड़ने को मुड़े, लेकिन यहोशफत चिल्ला उठा और यहोवा ने उसकी मदद की और खुदा ने उनको उसके पास से लौटा दिया। Yeah. So here we see how God protected Jehoshaphat. तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने यहोशफात की तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से की है। Ahab want to put him in danger. आहाब ने सोचा कि मैं इसे तकलीफ में ढकेल दूंगा। But God is merciful, protected this Jehoshaphat. लेकिन खुदा मेहरबान होकर यहोशफात को उस तकलीफ से, उस मुसीबत से बचाया। So these carnally minded people or those who are not believed in God, they put us in the trap. So we must be very much alert. तो ऐसा ही होता है कि जो भी खुदा से डरते नहीं हैं, गैर कौमी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हम जब उनके साथ दोस्ती में मशगूल रहते हैं तो हमें धोखे में, मुसीबत में ढकेल देते हैं। इसीलिए हमें हिफाजत से, सावधान से रहना पड़ेगा। Yeah, the Lord is there to protect His people. खुदा तो मौजूद है अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए। So that's what we must be all the time alert to whom we have friendship. इसीलिए हमें हमेशा जरा जांचते रहना चाहिए कि हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। So the eyes of the Lord are upon His people. तो हम देखते हैं कि खुदा की नजरें जो हैं वो उसके लोगों पर हैं। Now Jehoshaphat he has returned back home. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहोशफात वापिस अपना मुल्क, अपना घर लौटता है। Yeah, chapter 19 verse 1. आयत नंबर बाब नंबर 19 और आयत नंबर 1। Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem. शाह यहूदा यहोशफात यरूशलेम को अपने महल में सलामत लौटा। Yeah, though he failed to seek the will of God, whether to go along with Ahab in war, but God has been merciful, and because of his good deeds, God has delivered him. मुल्क सल्तनत या शाह इस्राएल के साथ, मतलब आहाब के साथ जंग में जाने के लिए खुदा ने तो शाह इस्राएल, शाह यहूदा यहोशफत को उसने अलो नहीं किया था, लेकिन उसने गया था। लेकिन उसके भलाई, अच्छे कामों की वजह से खुदा ने उसे छुड़ा कर वापिस यरूशलेम को लाया था। When he came home, लेकिन जब वो वापिस घर आया, Jehu the son of Hanani the seer went out and met him. 19:2 आयत नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो वहां क्या होता है? यहाँ एक सीर है। तब हनानी गायब बीन का बेटा यहू उसके इस्तकबाल को निकला। What did he say? यहाँ वो जाकर क्या कहता है? Read the verse. क्या मुनासिब है कि तू शरीरों की मदद करे और यहोवा के दुश्मनों से मोहब्बत रखे? इस बात के सबब से यहोवा की तरफ से तुझ पर गजब है। Therefore is the wrath upon thee from before the Lord. तो ये गैर बीन हनानी कहता है कि यहोवा की तरफ से तुझ पर गजब है। So when we do things against the Lord,
and we cannot enjoy the goodness of God. तो जब हम खुदा की मुखालिफत करते हुए बदी में फंसते हैं तो खुदा की बरकतें हम पा नहीं सकते। But the Lord is merciful. लेकिन खुदा तो मेहरबान है, He is able to protect His people in all situations when they repent. और वो हमेशा अपने लोगों को हर मुसीबत से छुड़ाना चाहता है जब वो मुसीबतों में फंसते हैं। So, with whom we have our friendship? तो जरा देखेंगे कि हम किसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। So our friendship with this world and the worldly people is an enmity against God. जब हम इस दुनिया से, दुनिया के गैर कौमों से दोस्ती में डूबते हैं तो ये खुदा की नजर निगाह में उससे दुश्मनी रखने का बराबर है। Yeah, we as a God's people, we must go closer to Him, depend on Him in all situations. खुदा के लोग होते हुए हमें क्या करना चाहिए? खुदा के करीब जाना चाहिए, हर वक्त हर लम्हा उसके करीब जाना चाहिए। Yeah, if you go and mingle with the people of this earth, we have to face danger like what Jehoshaphat faced. अगर हम इस दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप में डूबे रहेंगे तो यहोशाफात ने जिस मुसीबत में पड़ा था, इस तरह की मुसीबतों में हमें भी डूबना पड़ेगा। Yeah, so in James chapter 4 verse 4, इसीलिए याकूब की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है, ye adulterers and adulteresses, knowing not the friendship of the world is enmity with God, whosoever therefore will be the friend of the world is the enemy of God. यहाँ लिखा हुआ है, ए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। Yeah, whosoever therefore will be the friend of the world is the enemy of God. तो जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखना चाहता है वो खुदा का दुश्मन बनता है। Yeah, saved people always must have fellowship with saved people. नजात याफ्ता लोग जो होते हैं हमेशा अपनी शिराकत नजात याफ्ता लोगों से ही रखना लाजमी है। Yeah, from Romans chapter 8 we have seen about carnally minded and spiritually minded people. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 में हमने देखा था कि जिस्मानी लोग कौन है और रूहानी लोग कौन है। Yeah, so carnally minded is not pleasing God, but spiritual minded bring glory to God. जिस्मानी लोग जो होते हैं वो लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन रूहानी लोग जो होते हैं वो लोग ही खुदा को खुश कर सकते हैं। We ought to live a separated life. इसीलिए हमें हमेशा उनसे अलग होकर जीना है। All the time we must be alert whether things are like that. Am I following according to the word? So we have to search the scripture, what the scripture says. और हमें हर वक्त हर पल एहतियात से जीना पड़ेगा और अपने आप को जांचना पड़ेगा, क्या मैं खुदा के कलाम के मुताबिक जी रहा हूँ? मेरी जिंदगी का हर हिस्सा जो है, हर पार्ट जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं? So every time we must depend on God for our leading. इसीलिए हमारी हिदायत के वास्ते हर वक्त खुदा पर मुनहसिर रहना है। Yeah, He has given us the spirit of adoption and He leads us and guides us and He teaches how we have to walk in this world. खुदा ने हमें अपना लेपालक बनने का रूह हमें बख्शा है और हमें हिदायत देकर हमें आगे बढ़ाता है ताकि इस दुनिया में उसके लिए पसंदीदा जिंदगी हमें कैसे जिएं। Now, if we live careless life, they think that I am born again, I go to heaven, let me live as I like, and we land in trouble in our lives. अगर हम अपनी मनमानी की जिंदगी जिए और कहें कि मैं तो नजात याफ्ता बन चुका हूं और मैं अपनी मनमर्जी की मुताबिक जाकर फिर भी खुदा की बादशाहत में शामिल हो सकता हूं करके अगर हम समझेंगे तो शायद धोखा अपने आप को कर रहे हैं। So we take a lesson from Jehoshaphat's life. तो इसलिए आज शाम को हम यहोशाफत की जिंदगी से सबक सीख रहे हैं। A good man, he had affinity with the wicked man Ahab. वो तो अच्छा इंसान था, बल्कि बुरा इंसान, बुरा शाह आहाब जो है उससे उसने दोस्ती रखी। Yeah, so therefore we ought to separate ourselves day by day from the world and even from carnal people. इसीलिए दिन ब दिन हमें दुनिया
दुनिया से अलग होते जाना है और दुनिया में जो यीशु मोमिन कहते हुए भी जिस्मानी तरीके से जीने वाले जो होते हैं Romans उनसे 8 भी अलग होना है। Romans 8 verse 6. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 6। To be carnal minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। So we ought to be spiritually minded. इसीलिए हमें रूहानी नियत के साथ जीना है Then it is life and peace. और उसमें हमें जिंदगी और इत्मीनान हासिल होती है। Just look at Jehoshaphat, how he was in a very critical situation in the peak of the war. याद करें कि जब जंग छिड़ा तब यहोशाफत कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। He cried. तो वो उसने क्या किया था? चिल्लाया था। Yeah, God heard his cry. उसकी चिल्लाहट को खुदा ने सुना। Yeah, so these are lessons that we learn how we live upon this earth as a believer. तो हमें इस जमीन पर ये सारी बातें सबक सिखाती हैं कि एक यीशु मोमिन होने के नाते इस दुनिया में हम किस तरीके से जिएं। Many times the believers, the so-called carnally minded people, they deceive the spiritually minded people. इस दुनिया में बहुत सारी बार ऐसा भी हो सकता है कि जो भी अपने आप को यीशु मोमिन कहते हुए भी जिस्मानी तरीके से जीते हैं वो लोग रूहानी तरीके से जीने वाले यीशु मोमिनों को धोखे में डाल सकते हैं। Yeah, carnally minded people involve things which are bringing damage to others, and they tell lies and they speak evil. Even they manhandle people. और ये जिस्मानी नियत रखने वाले मोमिन जो हैं वो लोग हमसे झूठ बोल सकते हैं, हमें मुसीबत में ढकेल सकते हैं और हमें मुसीबत में उतार सकते हैं। Yeah, it's a very terrible thing. They lose their peace. और इस तरीके से वो लोग इत्मीनान खो बैठते हैं। Yeah, that's here book of Galatians chapter 5. हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब बाब नंबर 5। Here we are told about the works of the flesh. यहाँ पे जिस्म के काम जो होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। Yeah, verse 17 things are mentioned here. रोमियो Galatians गलातियों की किताब 5 पांचवा बाब and verse 19 to 21. 19 से लेकर 21वीं आयतें। Yeah, 17 things were mentioned. यहाँ पे 17 बातें लिखी गई हैं। Yeah, so we must be very careful how we have to keep ourselves away from such things. तो इन सबको जानने के बाद हमें एहतियात से जीना पड़ेगा कि इस ऐसी चीजों से बातों से हम अपने आप को महफूज कैसे रखें। Yeah, verse 25. आयत नंबर 25। If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। Yeah, so verse 26. आयत नंबर 26। Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें। Yeah, those they that are of Christ have crucified the flesh with the affections and the lust. Verse 24. आयत नंबर 24 में पढ़ते हैं क्योंकि जो माशियख यीशुआ के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। These are written for our admonition and correction. ये सारी बातें हमारे लिए तमसील बनकर हिदायत के वास्ते लिखी गई हैं। Yeah, before we take part in the Lord's table, let us examine ourselves. खुदा की इस मेज में हाथ डालने से पहले हम अपने आप को जांच लें। What I am I living a separated life, living a spiritually minded life, and which I am bringing glory to God. मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या मैं रूह की हिदायत से चल रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी से मेरे खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है या नहीं। If you've seen anything which you are compromising in your life, you ask the Lord to forgive. अगर आपकी जिंदगी में आप कुछ ऐसी बातें देख रहे हैं जिसमें आप समझौता कर चुके हैं दुनिया से तो खुदा से मुआफी तलब करें। Yeah, pray God
Lord, help me that I may be spiritually minded and I may tremble before the word and come under the sprinkling blood of the everlasting covenant. खुदा के पास आकर मुआफी मांगे और उस अब्दी खून के छिड़काव के नीचे हुए आकर मुआफी तलब करें Claim the efficacy of the blood. और खुदावंद यीशुआ का खून की अजमत जो है उसे आप खुदा से मांगें, It will cleanse us, wash us thoroughly. क्योंकि वो खून ही हमें हर बदी से छुड़ाएगा, धो करने को पाक करेगा। Yeah, 1 Corinthians chapter 11 verse 28. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयत नंबर 28। Yeah, but let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। So let us examine ourselves and what type life we are living. Are we living separated life, bringing glory unto God? तो हम अपने आप को जांचें और देखें क्या हम खुदा के लिए खुदा का जलाल जाहिर करने वाली जिंदगी जी रहे हैं या नहीं। If anything wrong, ask the Lord to forgive. अगर हमें कुछ खराबी है तो खुदा से इल्तिमास करेंगे कि वो हमें मुआफ करे। We spend some time on our knees examining ourselves, take part in the Lord's table. अब हम कुछ देर घुटने टेकेंगे और अपने आप को जांचते हुए वक्त बिताएंगे, उसके बाद इस मेज में हाथ डालेंगे।